last week. Okay, so quickly we'll revise. I'll need somebody to help me in discussing about the sample space that we discussed last time, few concepts that we discussed last time. Nikunj from Devi Dayal, either you put off your video or I'll put you out of the lecture. Thank you. Okay, great. Okay, so anybody who remembers what we studied last time? Students, we studied about probability. So anybody who can tell me? Okay, Kaivalya. I'll pick Kaivalya. Kaivalya. I don't know who raised their hand or messaged me, but I'm unmuting Kaivalya Bangar. Hi, Kaivalya. Hi, sir. Hello. Yeah, tell me. हम लोग ने 3 sample space पढ़ा कल, right? हाँ. You remember? Not kal. It's the last lecture. You remember the 3 sample space? 1 coin is tossed, 2 coins are tossed, and 3 coins are tossed. Yes. Can you tell me what is the sample space for 1 coin is tossed? Hello, sir. Sample space for 1 coin is tossed. What is the sample space for 1 coin is tossed? H-T. H comma T. Perfect. So N of S would be? 2. 2. Perfect. What is the sample space for 2 coins are tossed? H-H, comma, T-T, comma, H-T, comma, T-H. H-H, H-T, T-H, T-T. Perfect. What is the sample space for 3 coins are tossed? comma T-H-H, comma T-T-H. ऐसा याद रखोगे? H-T-T. मैंने कैसे याद दिलाया था? मैंने H-T-T, T-T-T, ऐसा थोड़ी बताया था. मैंने कैसे बताया था? याद है? H मतलब 2 कौन सा टॉस का लिखने का, पहले वाले पे H लिखने का और सेकंड वाले में T लिखने का. Perfect. Thank you so much, Kaivalya. I'll put you on mute. TGT Vijay Panchal, your video should be off, beta. Okay, great. So we'll just quickly revise. We understood what is a sample space. Sample space is a set of all possible outcomes. Okay. Then we studied 1 coin, 2 coin, 3 coins. Jimit Limbachia, Anand Patel. I don't know why your videos are getting on. It disturbs me. So now Ghatkopar Parth. Should I start the lecture or not? There are students who are putting on video. I can't teach because of that. Now the next person to put on his video by mistake also, I'm removing him from the lecture, him or from the lecture. Okay? Fine, because it comes in the recording and it covers the content. So 1 coin we know H comma T, 2 coins HH, HT, TH, TT, and 3 coins we had discussed last time. It is HH, we will write 2 coins twice. HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT, HH, HH, TT, TT. So this is what we remember. And N of S is 8. Now there is one thing that we have to understand, students, that I talking about relation. Now this won't be that important when it comes to simple sums. It will be important what I'm talking right now only when we are dealing with difficult sums of probability. I'm talking about question number 4 and question number 5 that is going to be a part of your board exams. Now students, now just pay attention what I'm trying to say. Anybody who can help me? Anybody? Preet Parman हर बार हो जाता है. Vihan. I'll pick up Vihan. Hi Vihan. Hello Vihan. Vihan. Okay, there's some problem. I'm not able to unmute Vihan. I'll pick up Shreyas. Shreyash from JB Nagar. Hi Shreyash.
Hello, sir. Hi. How are you? I'm fine, sir. How are you? I'm good. Okay. अभी मुझे बताओ n of s, तुमको मुझे बताना है n of s, मैं जिसका पूछूंगा n of s उसका बताना है, ठीक है? वन कॉइन इज टॉस्ड, जब मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो n of s कितना है? 1 coin. हाँ. 2. परफेक्ट. जब मैं टू कॉइन टॉस करता हूं तो n of s कितना है? NFS 4. 4. तो कैन आई से 2 into 2? Yes. अच्छा, तो 3 कॉइन्स का कैसा है? 8 है. 8 है. तो कैन आई से 2 into 2 into 2? Yes. नाउ दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एनी सैंपल स्पेस. अगर मुझको 4 कॉइन्स का ढूंढना है, n of s ढूंढना है, एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे तुमको कि 5 कॉइन इज टॉस्ड, n of s लिखो. तो अगर मैं सैंपल स्पेस लिखने बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा. Yes. तो 5 कॉइन इज टॉस्ड का क्या आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 5. तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6, 6 2 32. समझा? ये लॉजिक समझा? Yes. Now this you have to remember for any type of event. अगर सेम चीज रिपीट हो रहा तो दिस हैव टू यूज. थैंक यू सो मच श्रेयस. I'll mute you. Okay, I'll clear the drawings. Okay, now we'll go ahead. Now we'll take up few sum students and then we will go ahead. Okay, I'm reading the sum for you. पहला sum मैं बहुत अच्छे से करूंगा. तुम लोग इसका presentation पे भी ध्यान देना अच्छे से. Students, 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. P is an event of getting at least 2 heads. Q is an event of getting no head. R is an event of getting head on the second coin. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं and then somebody will help me. I'll pick up somebody randomly. 3 coins are tossed. The sample space will be HH, HT, THTT, HH, HT, THTT, HH, HH, TTTTT. Somebody is unmuted. God knows why. Okay. Now students, n of s here is going to be 8. Now एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यूजुअली हम लोग भूल जाता है. ध्यान दो, यहाँ पे तुम लोग को सब एलिमेंट्स के बीच में कॉमा दिख रहा है. इधर एक कॉमा है, मेरा एरो फॉलो करो. फिर इधर एक कॉमा है, फिर इधर एक कॉमा है, इधर भी एक कॉमा है. इफ यू मिस एनी ऑफ दिस कॉमा यू विल स्ट्रेट अवे गेट 0. Okay, so remember not to forget to put commas. Now the first event says P is an event of getting at least 2 heads. Now who will answer me? Who will answer me? Who will answer me? I'll pick up somebody new, not somebody. Okay, unmute नहीं हो पा रहा है, क्या पता क्यों. Okay, we will take Shreya from Vikroli then. Hi Shreya. Hello Shreya. Shreya Agarwal from Vikroli, you are unmuted. Can you hear me? No. Yes, sir. Hi Shreya, finally. Okay Shreya. Shreya, the P is an event of getting at least 2 heads. तो तुम मुझे बताओ P में क्या क्या आएगा. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा P, फिर मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट, फिर P में क्या क्या आएगा बताओ. एटलीस्ट 2 हेड्स, क्या क्या आएगा? H HH, HHH HH, HHH THH HHT. THH, HHT. एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 और 2 से ज्यादा. करेक्ट? Yes. यस, तो यू आर परफेक्टली राइट. व्हेन आई से एटलीस्ट 2 हेड्स, स्टूडेंट्स तुमको याद रखने का एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2. 2 से ज्यादा चलेगा तो HHH चलेगा, HTH चलेगा, THH चलेगा, TTH नहीं चलेगा, HST चलेगा, HTT नहीं चलेगा, THT नहीं चलेगा, TTT नहीं चलेगा. तो N of P क्या आएगा श्रेया?
श्रेया चली गई लगता है, कहीं तो चली गई. Okay. So n of p would be definitely 4. Now q is an event of getting no head. No head. क्या आएगा बताओ, चैट बॉक्स में बताओ. चलो चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ. नो हेड मतलब क्या क्या आएगा? यस, प्रीत परमार इज परफेक्ट. इट इज क्यू में आएगा टी टी टी. क्यू में आएगा टी टी टी. नाउ n of q will be 1. r is an event of getting head on the second coin. So I am picking up Aditya Parathe from DN Nagar. Hi Aditya. Hi Aditya. Hello sir. हाँ. R is an event of getting a head on the second coin. क्या आएगा? HHH. अच्छा, second coin मतलब HHH बीच और क्या वाला. क्या आएगा? THH. THH, HHT. HHT, THT. THT. Now exactly what Aditya told us. Now what second coin मतलब क्या? देखो पहला H फर्स्ट कॉइन है, सेकंड H सेकंड कॉइन है, थर्ड H थर्ड कॉइन है. तो बीच में जहां पे H है अपने को वो लिखने का है. तो HHH, THH, HHT and THT. Thank you so much Aditya, you're perfectly right. Thank you so much. So n of R would be 4. Now students, you have to copy this sum from the video or later on from somewhere, or you could have taken the screenshot. Now this is a sum not from your textbook. I want quickly everybody to solve the sum, and I'm picking up somebody to answer. I want all the statements to be written. I will ask you to show me the book by keeping your video on. Now first person to answer will be asked to speak in the class. Quickly solve. You have to write all the statements. I'm giving you 5 minutes. A coin is tossed 3 times. A is an event of getting head appears once. B is an event of that head appears at the most twice. C is the event that head does not appear. I want the statements to be written. सबसे पहला a coin is tossed, फिर sample space, फिर n of s, फिर event A क्या है लिखो, फिर A लिखो, फिर n of A, and so on. Quickly, I'm giving you 5 minutes. Let me know who has done, who has completed the sum. Done? Then we can go to a new sample space. Sir, I have a doubt, sir. यहाँ पे 3 coins are tossed. तो sample space 3 coins का क्यों लिखा है? I have a doubt. यहाँ पे 3 coins are not tossed. See, when I talk about when 3 coins are tossed or 1 coin is tossed 3 times, result वही होएगा ना? अगर 1 coin is tossed 3 times में H का मतलब हो गया पहला वाला टॉस में H आया, सेकंड वाला टॉस में H आया, थर्ड वाला टॉस में भी H आया. अभी 2 coins tossed बोलूं या 1 coin is tossed twice बोलूं, सैंपल स्पेस सेम ही रहेगा, भले उसका मतलब अलग है, सैंपल स्पेस में डिफरेंस नहीं आएगा. इज दैट क्लियर आदर्श? इट वाज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन. गुड. अभी यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक किया हुआ है. अगर मैं पेपर करेक्टर रहूं तो मैं तुमको 0 मार्क्स दूं, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला है. अगर मैं ये कॉमा नहीं डालता हूं तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाता है, और अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो मेरा एन ऑफ एस बदल जाएगा, याद रखो. तो एन ऑफ एस इज 8. Done, anybody? Good Atharva. Leher has done. Leher was the first one to complete, लेकिन वो मेरा पोपट करती है. Good Chahat, very nice. Anybody else?
So 2 students, one from Ghatkopar, one from Mulund is done. Others, I hope Leher and Chahat, both of you have written all the necessary statements as well. Okay, Saidam. Good, good. Okay, so let's see who is ready to answer. Who is ready to answer? And be quick. We have to learn few more sample spaces today. And next lecture, we will learn the formula for probability and many more sample space. And don't worry, at the end, I will give you a concise sheet of the different sample space. Sir, Aditya has started screen sharing. How can Aditya start screen sharing? Okay, Labdi from Ghatkopar will answer. From Devi Dayal. Anyone of students? Type yes or no. Can you hear me now? Yes. Okay. I'm audible. That means okay. At the most twice, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो. तो can I say indirectly when they say at the most twice, मतलब तीन नहीं चलेगा. मतलब H नहीं चलेगा. H छोड़ के बाकी सब लिख दो. खत्म हो गया. TH सब लिख दो. And N of B would be 7. C is an event of that the head does not appear. हम लोग ने देख लिया TTT. N of C would be 1. Okay, great. Now time to go to the next sample space. Okay, I will be needing 2 students जिनके हाथ में dice होगा, जिसके पास dice होगा. Can students who have dice go grab a dice and tell me, sir, मेरे पास dice है, I'll pick you up, pick both of you. Somebody has arranged. मेरे को दिख नहीं रहा है किसने अरेंज किया है. सुभाशीष आशीष, तो सुभाशीष को पिक करेंगे एक. हाय सुभाशीष. सुभाष अनम्यूट नहीं हो रहा है. और किसके पास है? प्रीत परमार के हाथ में है, बोलता हर बार. ओके. अरे ऐसा श्रेयस ऐसे नहीं चलेगा. हाय, हेलो Subhashish? Yes, sir. Okay, Subhashish, we have Subhashish. We need one more. Rishita from JB Nagar. पता नहीं अनम्यूट होने को टाइम लग रहा है. Okay, Subhashish, till we unmute Rishita, I've tried. हम लोग पहला एक कॉइन का कर लेते हैं, ठीक है? एक डाई का कर लेते हैं. एक मिनट, पहला मेरे को पॉइंटर हटा देने दो.
Okay. Okay. Students, one die is thrown now, and try to understand when one die is thrown, the spelling of a die, a singular form of die will be DIE. याद रखना, a singular form is DIE, not DICE. One die होता है, two dice होता है. तो सुभाषिश, मुझे बताओ, अगर डाई थ्रो किया तो तुम्हारे डाइस में डाई में क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है? सर 6 3 2 1 5 4. अच्छा ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 है. हाँ सर. तो S हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, N of S हो जाएगा 6. नाउ स्टूडेंट्स, राइट द हेडिंग वन डाई इज थ्रोन. S और N of S लिख के लो. 10 सेकेंड. सुभाषिश जल्दी लिखो और मुझे बताओ, हो गया? सर हो गया. Okay. Okay, perfect. Now anybody who has one more die? Sir, I am there. हाँ, you're there. इतना टाइम लग गया क्या अनम्यूट होने पर? हाँ सर, वो डाइस लेने गए थे. अच्छा, डाइस किधर लेके आए? अभी इधर लॉकडाउन चल रहा है सब जगह. Sir, the game में से. हाँ? From my sister's game. Okay, okay, perfect. Now just a second, hold yourself. तभी तक हम लोग एक सम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तुम लोग मेरे को आंसर बताओगे. A die is rolled. तो सुभाषिश मेरे को बताओ S क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. N of S क्या आएगा? 6. N of S आएगा 6. अच्छा. दूसरा कोई, what is your name who is unmuted? The girl who is unmuted, what is your name? Sorry. Hello. 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 पता नहीं. सुभाषिश तुम ही बताओ. I can't hear her. A is an event of getting an even number. सुभाषिश even number क्या क्या आएगा A में? 2 4 6. 2 4 6. 6. Still online. N of A will be 3. Okay, okay. Subhashish, I'll mute you. Okay. B is an event of getting an odd number on the upper face. तो क्या क्या आएगा मेरे को बताओ, चैट्स में बताओ क्या क्या आएगा. B is an event of getting an odd number on the upper face. 1 3 5. Rishita, it's okay. तो N of B हो जाएगा 3. C is an event of getting an prime number. क्या क्या आएगा प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर में क्या आएगा? 1 नहीं आ सकता. 1 is not a prime number. 2 3 and 5. The perfect answer was given by Astha. So C would be 2 3 and 5. N of C would be 3. Quickly, I'm giving you 2 minutes. Copy down the sum. Quickly, 2 minutes. Copy down the sum. सब डाइस लेने चले जाते हैं, फिर खुद को म्यूट कर देते हैं. कैसा चलेगा ऐसा? मेरा पेन कहाँ गया? Okay, once you're done, please tell me that you're done. Great, great, great. When majority of you are saying done. Good, 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 good. Okay, okay, okay. Now, let me tell you. Now, the next that we are going to study, 2 dice are thrown. 80% of times, the question is always based on 2 dice are thrown. Now try to understand, this will be the most important sample space of the chapter probability. इसमें बहुत सारे complications possible है. बहुत सारे complications possible है, तो ध्यान से देखना. When 2 dice are thrown, क्या क्या आ सकता है? Now these are the possibilities. तुम्हारे स्क्रीन पे मैंने डाइस का फोटो रख दिया है. 1 दोनों में 1 1 आ सकता है, दोनों में 1 2 आ सकता है, एक में 1 एक में 2 एक में 1 में एक में 3 एक में 1 एक में 1 में 4 5 6 ऐसा.
लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं सैंपल स्पेस लिखने का कोशिश करूं, अभी इमेजिन करो मैं सैंपल स्पेस को लिखने का कोशिश करूंगा, तो अगर मैं 1 1 लिखूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना, 1 1 लिखा, कौन सा 1 किसका। अभी समझो मैं सैंपल स्पेस लिखने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ दोनों में 1 1 आया, फिर 1 2 आया, तो अभी ये 11 लग रहा है लेकिन ये 1 1 है। अगर मैंने इधर कॉमा डाल दिया तो ऐसा लग रहा है 1 1 1 2, ये सब अलग अलग है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो एक पर्टिकुलर तरीका है, अभी ध्यान से सुनो, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन। देखो अभी श्रमन तुमने जो बताया उसमें 11 12 हो गया, वैसा नहीं लिख सकते। There is a particular way of writing this sample space and try to understand सिर्फ 2 dice are thrown में वो allowed है, सिर्फ 2 dice और thrown में वो allowed है और किसी में allowed नहीं है। तो अगर 2 dice of sample space लिखना है, n of s डेफिनेटली 36 होगा, तो ऐसा लिखेंगे 1 1 ब्रैकेट। ध्यान से सुनो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सिर्फ 2 डाइस में अलाउड है और किसी में अलाउड नहीं है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सिर्फ 2 डाइस में अलाउड है और किसी में अलाउड नहीं है। तो 1 1 1 2 1 3, ये सारे कॉमास को भी देखो, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 6 तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जल्दी से सैंपल स्पेस लिखो, फिर एन ऑफ एस लिख दो, फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है और मुझे बताओ कौन रेडी है मेरा क्वेश्चंस करने के लिए। मैं थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछूंगा इस पे। ओके ओके, पहले लिख लो, उसके बाद पहले लिख लो। No, Kaivalya, not again. Hanbri, I tried to unmute you, but there is some problem with you, so I can't hear you. So 2 dice are thrown. 3 dice का नहीं आएगा, उसका एन ऑफ एस तुमको एक सम था पुराने टेक्स्ट बुक में, we can discuss when we meet in the classroom, वो 3 dice of thrown का सम। Okay, 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 okay. Okay, Honbri, I will try again, but this time it fails. Okay, I believe if सबका लिख के हो गया रहेगा तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। Hi, Honbri. Yes, sir. Okay, is it? Am I pronouncing your name right? Yes, sir. Can you be a bit louder? Yes, sir. Okay. Okay, now listen to the question. Okay, once you have written, okay? I want such pairs, okay? I want such pairs where the sum of both the dice. अभी याद रखो, अभी मैं जब 1 1 बोल रहा हूँ, मेरा माउस दिख रहा है तुमको माउस? हाँ, सर. जब मैं 1 1 बोल रहा हूँ तो ये फर्स्ट वाला 1 फर्स्ट डाई का है, सेकंड वाला 1 सेकंड डाइस का है, फिर फर्स्ट डाई सेकंड डाई, फर्स्ट डाई सेकंड डाई, फर्स्ट डाई सेकंड डाई, ऐसा है। समझ में आ रहा है? समझी? Yes, sir. हाँ, परफेक्ट। अभी आवाज आया, ऐसा हो जाना चाहिए। अभी तुमको ऐसा बताना है मेरे को दैट सम ऑफ बोथ द स्कोर्स शुड बी 9। Should be 9. 3,6 फिर 4,2 4 प्लस 2 9 होता है। वाओ, 4 प्लस 2 मेरे हिसाब से 6 होता है। 3,6 4,5 5,4 6,3 ओके, अभी मेरे को बताओ सम शुड बी 8 वाला। 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2। तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया रहेगा तो कुछ पैटर्न दिखा? हाँ, क्या पैटर्न दिखा? ऐसे स्लैंट जा रहा था 2,6 से 6। एग्जैक्टली, ये याद रखना।
जब भी सम पूछे ना, सब ढूंढते बैठने का नहीं, हमेशा ये राइट है। कोई भी लाइन ले लो, अगर ये देखो 6,2 एक मिल गया, 6,2 8, ये पूरा लाइन अगर यही ऑर्डर में लिखोगे, ये पूरा 8 है और कोई 8 है ही नहीं, पूरा सैंपल स्पेस में और कोई 8 है ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो अभी एक और 7 वाला देखो, ये वाला 7 है, राइट? ओके, अभी है ना, मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझको ऐसे नंबर्स बताओ जिनका एडिशन, ऐसे पेयर बताओ जिनका एडिशन इज ग्रेटर देन 7। ओके, लेस देन 7 करो पहला। एडिशन इज लेस देन 7, एडिशन इज लेस देन 7। 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 2,4 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 5,1 हो गया। हो गया ना? कैसे पता चला? इसमें भी कुछ पैटर्न दिखा? हाँ, ऐसे मतलब स्लैंट स्लैंट जा रहा था थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे। अच्छा देखो, एकदम थोड़ा स्लैंट स्लैंट जा रहा था ना पीछे पीछे, अपन उसको रुकाएंगे उधर ही। हम क्या करेंगे, ये लाइन देख लो, ये तुमको 7 वाला दिख रहा है? हाँ अभी ये ब्यूटीफुल पार्ट है, अगर ऐसे ही लिखो ना तो तुम्हारा टाइम कितना बचेगा देखो। ये जितना भी मैंने शेड किया ना, ये इसके ऊपर वाला लेस देन 7 है और इसके नीचे वाला हाँ। मोर देन 7 है। समझ में आया? अगर हाँ। मेरे को बोला सम शुड बी लेस देन 7, तो 7 वाले लाइन का ऊपर वाला लिख देने का। सम शुड बी मोर देन 7 बोला तो 7 वाले लाइन का नीचे वाला लाइन लिख देने का। समझ में आ रहा है? हाँ सर। टाइम वेस्ट करने का नहीं, एक एक करके, एटलीस्ट 7, एटमोस्ट 7, मल्टीपल ऑफ 6, ऐसा बहुत सारा आने वाला है। तो हम लोग जैसे जैसे सम्स आएंगे इसमें टेक्निक देखेंगे। तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। डू यू थिंक इट विल हेल्प? दिस टेक्निक विल सेव टाइम? यस सर। Okay, good, very good, very good. And I must say you have a very good analytical thing कि तुमको पैटर्न जल्दी दिख गया। नहीं तो बहुत सालों से लोग करते जाते हैं, किसको समझ में नहीं आता कि ऐसा पैटर्न फॉलो होता है। Okay? ओके सर। Oh, yes, yes, Indian flag. Okay, very nice. Thank you. Good observation. Thank you. Okay, students, I believe you have written the sample space. हम लोग एक सम ले लेंगे, ठीक है? अभी सब लोग सम लिखेगा, आंसर लिखेगा फटाफट। 2 डाइस ऑफ थ्रोन, सबसे पहला सैंपल स्पेस लिखो और एक एक करके इवेंट लिखो। चलो जल्दी, किसका आंसर फटाफट राइट आता है देखते हैं। पहले वाला बता दूंगा, चलो किसी की मदद से मैं पहले वाला बता दूंगा। यस आदर्श, यू आर राइट। पहले सैंपल स्पेस लिखो, फिर इवेंट ए लिखो। किसको इवेंट ए का आंसर आता है मुझे बताओ। सर इवेंट ए का आंसर मुझे आता है, मैं बताऊंगा। मुझे आता है, मैं बताऊंगा। प्रीत परमार इज रेडी टू आंसर, तो इफ आई हैव एनी अदर ऑप्शन, इफ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई विल पिक प्रीत परमार। हितेश फ्रॉम घाटकोपर। I believe everybody is writing the sum. Hi Hitesh. आवाज आ रहा है? हेलो सर। हाँ, हाय हेलो, हाय हितेश, हाउ आर यू? फाइन। समझ में आया तुमको सैंपल स्पेस के बारे में? हाँ। अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आया? 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, यस सर। 1 डाई, 2 डाइस। हाँ, समझ में आया। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 6 में क्या क्या आएगा मेरे को बताओ। सर उसका एडिशन 6 या 12 हो सकता है, क्योंकि क्या बात मैक्सिमम है? एडिशन 12 होगा। ये इतना सब तुमने कैसा सोच लिया? सर अभी 6 मैक्सिमम 12 ही होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट, मैं सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तू मुझे आंसर बताना, ठीक है? हाँ। अभी स्टूडेंट्स, what he has told us is perfectly right, and I doubt everybody can think so fast to that level. If I would have been learning for this first time, शायद मैं नहीं सोच पाता। तो अभी मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल। तो तुम मुझे मेरे को बताओ, अभी तुम अनम्यूट हो ना, तुम ही बताओ 6 का टेबल क्या है? 6 1 जार, टेबल बताओ। 6 वेरी 6 2 नाइस। 12। अरे रुको ना, 6 मैं थोड़ी 12। फास्ट, रुको ना। 6 2 जार हाँ क्या हाँ, आएगा? बोलो। क्या आएगा? 6 2 12 जार, वेरी नाइस। 6 3 12 जार, 12 12 6 3 जार भी 12, 18
18. ओके. नाउ स्टूडेंट्स अभी याद रखो सबसे 18. हाँ समझ गया अभी आगे बता रहा हूँ, भड़को मत, आराम से. सबसे छोटा नंबर 1,1 है और सबसे बड़ा नंबर 6,6 है. अगर 6,6 सबसे बड़ा नंबर है तो 6 + 6 12 है. तो एडिशन 12 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है. एडिशन 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है. मतलब 18 हमको एडिशन मिल ही नहीं सकता है. तो इनडायरेक्टली व्हाट हितेश हैज टोल्ड इज राइट. सम शुड बी आइदर 6 और 12. सम शुड बी आइदर 6 मतलब ये सारे नंबर्स आएंगे. हाँ. ओके थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. सम शुड बी 6 मतलब क्या क्या आएगा? 1,6 2,4 3,3 1,5 5,5 और क्या आएगा? 6,6 6,6. और कुछ आएगा क्या? नो. तो ए में क्या क्या आएगा? 1,5 1,5 2,4 2,4 3,3 3,3 4,2 4,2 5,1 5,1 6,6. 6,6. अभी स्टूडेंट्स तुम लोग को ऐसा है ना, नोटबुक में खत्म नहीं करना जो सब. ओके हितेश तुम ऑनलाइन डिस्कशन तुम्हारे साथ ही करेंगे, ठीक है? एन ऑफ ए क्या हाँ. आएगा? N of A 6. एन ऑफ ए क्या आएगा? 6. एन ऑफ ए 6. हाँ तो भड़कते क्या छोटे छोटे बात पे. नाउ बी इज द सम. बी इज एन इवेंट. आई होप एवरीबॉडी इज सॉल्विंग. B is an event that sum of the scores should be at least 10. तो कैसे ढूंढूं मैं, बताओ मुझे हितेश. क्या करने का? 6,4 5,4 4,6 का वो लाइन है ना, स्लैंट लाइन. हाँ परफेक्ट. सी नाउ स्टूडेंट्स व्हाट हितेश इज से. हाँ फुल से ज्यादा वाला लेने का, राइट? Now students what Hitesh is saying is right. At least 10 मतलब 10 and more than 10. तो ये लाइन अपना 10 वाला है, ये पूरा लाइन अपना 10 वाला है. तो ये 10 and more than 10. तो 10 और 10 से ज्यादा सब कुछ लिखना है. तो exactly what Hitesh told us. B में आएगा 4,6 5,5 6 5,6 6,4 6,5 6,6. हितेश n of B क्या आएगा? 6. तो स्टूडेंट्स कॉपी डाउन क्विकली. हाँ. अभी सी वाला सब लोग लिखो. सी वाला जल्दी लिखो. सी वाला लिखो. निकेतन गांधी डिड नॉट अंडरस्टूड. ओके आई विल सी वाला सब लोग खुद से लिखो और मुझे आंसर बताओ. तब तक आई विल टॉक टू निकेतन. ही हैज नॉट अंडरस्टूड समथिंग. हाय निकेतन. हेलो निकेतन. हेलो निकेतन. व्हाट इज योर डाउट? बेटा निकेतन बोलो. यस प्रीत, डू नॉट टाइप योर आंसर, वी गॉट इट. निकेतन इज नॉट रेडी टू स्पीक. अच्छा, you don't have a speaker. Can you tell me what is your doubt, Niketan? Yes, Labdi, you are right. Okay, so see till Niketan talks about his doubt. C would be. Khushi, can you tell me what is your doubt? C would be 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6. N of C will be 6. No doubts. Not dear Nagar Khushi, the other Khushi. The other Khushi wanted me to go slow. Yeah, I'm not giving more time to write because as discussed in the first lecture, I want to discuss as many sums as possible in the sum. I'm not giving more time to write, right, Khushi? Okay, Khushi, I will just pick you up. You tell me what is the issue. Because मुझे ज़्यादा sums लेना है. टेक्स्ट बुक से बहुत ज़्यादा sums मुझे solve कराना है. खुशी वोरा from घाटकोपर, I am just unmuting you. Hi, Khushi. Hi, Khushi. Khushi is not speaking.
किरण कदम फ्रॉम जेबी नगर इज नॉट अंडरस्टूड समथिंग, आई विल पिक यू अप। क्या डाउट है हम लोग देखेंगे किरण का। देखो स्टूडेंट्स, कॉपी करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट फ्रॉम द वीडियो इफ यू हैव नॉट रिटन समथिंग। हाय किरण। Hello, sir. हाँ बोलो ना किरण, क्या डाउट Sir, है। हाँ sir, I have a doubt that I didn't understand the event B. इवेंट बी, क्या बोला इवेंट बी में, क्वेश्चन पढ़ो। The sum of the scores of the upper faces is minimum 10. मिनिमम 10, मिनिमम का मतलब क्या समझ में आता है तुमको। कम कम से कम 10। तो क्या करेंगे हम पहले 10 वाला लाइन ढूंढेंगे। तो 10 वाला लाइन क्या है। 4, ये 4,6, 5,5, 6,4. अच्छा, कम से कम 10 मतलब 10 तो आएगा ही, तो Yes. ये आएगा ही, 4,6 आएगा ही, 5,5 आएगा ही, और 6,4 आएगा ही, बराबर। Yes. अभी कम से कम 10 मतलब 10 से ज्यादा कि 10 से कम। 10 से कम. हाँ 10 से कम. क्या बोला, मिनिमम 10, मिनिमम 10। Yes. अच्छा, पास होने के लिए तुमको 100 में से मिनिमम 35 चाहिए, तो तुमको 35 से कम लाने का है ना पास होने के लिए। नहीं नहीं. तो फिर मिनिमम मतलब कम से कम, कम कैसे हो सकता है, ज्यादा होगा ना बेटा। Yes. समझा, मिनिमम 10 नहीं होगा, इधर क्या होगा, 10 से ज्यादा. ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो 10 वाला तो आ गया, और क्या क्या आएगा बताओ तुम। ऊपर वाला लिखो कि नीचे वाला लिखो। और नीचे वाला. हाँ तो 5,6 आएगा, 6,5 आएगा, 6,6. 6,6। अभी होता क्या है मालूम है, इसमें हम लोग ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है वर्ड्स की वजह से, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है वर्ड्स की वजह से। हमको समझना चाहिए कि मिनिमम 10 से ज्यादा, समझ में आया। हाँ. 10 और 10 से ज्यादा, ज्यादा. इतना क्लियर हुआ। अभी आपका डाउट क्लियर हुआ। Yes, sir. ओके ग्रेट। परिगा हैड द सेम डाउट। प्रीत डोंट डू नाटक। परिगा हैज द सेम डाउट, इज इट अंडरस्टूड। ग्रामर शुड बी पावरफुल, यस श्रेय, ग्रामर शुड बी पावरफुल। अगर इंग्लिश पावरफुल नहीं है तो सम नहीं समझेगा। आई एम नॉट टेकिंग मोर सम्स टुडे। अगर डाउट्स नहीं है तो मैं आगे जाता हूं। परिगा को समझ गया, ग्रेट। राज चौहान, आई डाउट, जल्दी जल्दी डाउट पूछो, नेक्स्ट लेक्चर भी है 6 बजे का है अपने पास टाइम, 5 मिनट है। किसको डाउट था। ओके ओके, इवेंट ए, विद्या निकेतन, इवेंट ए में क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या है, अभी ध्यान से सुनो। मेरे को इवेंट ए का डाउट पूछा है, मल्टीपल ऑफ 6, 6 का टेबल, 6 1s are 6, तो सम 6 क्या क्या है, ये सारे 6 है, 1,5, 2,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, और 6 2s are 12 है, तो 6,6। तो अपना इवेंट ए में आएगा, इवेंट ए में ये सब कुछ आएगा। इवेंट ए में 6 का टेबल, जिसको भी ऐड करके 6 का टेबल आएगा वो सब आएगा। इस पे और कॉम्प्लेक्स सम्स आ सकते हैं, यस वी विल डिस्कस। टेक्स्ट बुक में वो सम्स नहीं है कॉम्प्लेक्स वाले, तो अगर तुम लोग अच्छे से ध्यान दोगे, फटाफट समझोगे, तो मैं लाइव लेक्चर में डिस्कस कर पाऊंगा, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाने आऊंगा। क्या हो गया पीपीटी को, प्रीत। यस यस, व्हाट इफ देयर इज अ मैक्सिमम, मतलब पीपीटी हैंग हो गया। नो पीपीटी हैंग नहीं हुआ, मैं रुक गया हूं। ए समझ में आया, इवेंट ए जिसका डाउट था। या आई बिलीव आई हैड टू टेक वन मोर सम, लेकिन लिखने में तुम लोग थोड़ा स्लो है, थोड़ा ज्यादा फास्ट करो, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे इनोवेटिव सम्स है जो बोर्ड्स में आने के चांसेस है, जो प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक्स है, वो सारे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। फिर डेफिनेटली व्हेन आई कम टू द क्लासरूम आई विल डिस्कस। ओके राज, व्हाट इज योर डाउट। यस राज, यस व्हाट इज योर डाउट, टाइप योर डाउट फर्स्ट राज, क्योंकि मैंने इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी सब वापस सिखा दिया। इवेंट सी आएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6।
होमवर्क में कुछ देखो, जो सम्स होमवर्क में कर सकते हो तुम लोग वो इजी होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे ऐसे सम्स का तकलीफ है जो सम्स मैं तुमको होमवर्क दूंगा तो तुमको आएगा ही नहीं। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऐसा वर्ड नहीं आ सकता है, एटमोस्ट आ सकता है, ऑलमोस्ट वर्ड नहीं आ सकता। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम के साथ जो करना है वही ऑलमोस्ट के साथ करना है, एटलीस्ट के साथ करना है। एटलीस्ट और मिनिमम सेम है। एन ऑफ बी को, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट को अगर तुम लोग ने करली ब्रैकेट में लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा। एन ऑफ बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ सी ये करली ब्रैकेट में नहीं आ सकता है, इट शुड बी विदाउट ब्रैकेट्स। ओके, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। मैं आज एक होमवर्क में शीट पास ऑन करूंगा, एक होमवर्क में शीट पास ऑन करूंगा, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। सारे इजी सम्स होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे सम्स पॉसिबल है जो टेक्स्ट बुक के एक भी सम से रिलेटेड नहीं होगा, जो सिखाने पे बहुत इजी होगा लेकिन नहीं सिखाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। देन देयर आर फ्यू सम्स अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट जो मेरे को डिस्कस करना है, इफ टाइम परमिट्स, ऑनलाइन, अदरवाइज डेफिनेटली ऑफलाइन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ध्रुव सर।